Hello everyone, I am Inalmu, lecturing information technology. Okay, in the previous video we have seen multiprocessor operating system in which multiple number of processor are used in a single machine and other resources such as memory, system bus or other input output devices are shared through these multiple processor. So multiple processor operating system is called as the tightly coupled system. Why? Because it shared the memory of the system. And in this video we will see distributed operating system in details. Okay. So what is distributed operating system? Okay, a distributed operating system is a multiple connected CPUs working together. मल्टीप्रोसेसर में क्या होता था, मल्टीपल नंबर्स ऑफ सीपीयू होते थे बट इट इज इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल मशीन. बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर independent computer interconnected through some network. Okay, and these CPU are capable of collaborating the task. मल्टीपल्स नंबर ऑफ सीपीयू होते हैं बट एक सिंगल मशीन होती है, यानी ईच सीपीयू हैज इट्स ओन मेमोरी. जो मेमोरी का जो मेन रिसोर्सेस है वो यहाँ पे शेयर्ड नहीं होता है. मीन्स ईच सीपीयू हैज इट्स ओन मेमोरी, so memory is not shared. So that's why distributed operating system is called as the loosely coupled system. And here in multiprocessor operating system is called as the tightly coupled system. Why? The memory is shared. Okay, so multiple connected CPUs are working together to complete the task. एक टास्क दिया जाता है एंड उस टास्क को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे टास्क में, और वो टास्क फिर नंबर्स ऑफ सीपीयू को असाइन किया जाता है. मीन्स मल्टीपल सीपीयू आर वर्किंग टुगेदर to to complete a task or to collaborating on a task. Then a collection of independent computers that appears to its user as a single coherent system. Okay, multiple numbers of distributed machines होती है, distributed system होते हैं, but user को ऐसे शो होता है कि it is a single system. वो जो काम कर रहा है वो single system पे काम कर रहा है. एग्जाम्पल है पैरेलल मशीन है, नेटवर्क मशीन है. पैरेलल मशीन, नेटवर्क मशीन यानी जो भी कंप्यूटर सिस्टम होगा वो नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे. या एटीएम मशीन ले लो या सेलुलर नेटवर्क ले लो. ये सब जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है. मीन्स ईच डिवाइस हैज इट्स ओन रिसोर्सेस, ओन मेमोरी, बट दे आर working together to complete some task. Okay, then this is the diagram of distributed operating system where numbers of machines are present here. 5 numbers of machine, and 5 machines have their own CPU and their memory. So memory is not shared here, and these machines are connected to each other through some communication networks. Communication networks means they are connected through some LAN networks or Wi-Fi network, whatever it is used. Okay, so this is the diagram of distributed operating system. Then it is loosely coupled system. Already we have seen distributed operating system doesn't share the memory, so it is called as loosely coupled system. Second is the use client server technology. Okay, now in multiprocessor system that uses the master slave technology, means one of the CPU is master and other CPU are slave. Here similar some functioning is similar to master slave, but here distributed operating system they use client server technology. Okay, the some machine can act as a client, and one particular machine, yes, some one or two machines can act as a सर्वर. ओके, तो क्लाइंट का काम क्या होता है, टू रिक्वेस्ट अ सर्वर टू फुलफिल सम टास्क और टू कंप्लीट सम टास्क. क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, परफॉर्म करता है और उसको रिजल्ट सेंड बैक करता है. दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो client server
आर्किटेक्चर फॉलो करता है. देन थर्ड इज सर्वर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, कंप्यूटर सर्वर एंड फाइल सर्वर. अभी कंप्यूटर सर्वर क्या करता होगा, कंप्यूटिंग रिलेटेड जो काम होंगे वो कंप्यूटर सर्वर परफॉर्म करता होगा. एंड फाइल सर्वर क्या करता होगा, फाइल रिलेटेड. हम फाइल किसको बोलते हैं, द फाइल विच आर सेव द इंफॉर्मेशन विच आर सेव्ड इन यूर हार्ड डिस्क. जो भी आपके डिस्क में सेव होंगी उसको हम फाइल बोलते हैं. ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो कंप्यूटर सर्वर क्या करता है, इट्स प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू विच क्लाइंट कैन सेंड रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन एक्शन एंड सर्वर सेंड बैक रिजल्ट टू क्लाइंट. एंड फाइल सर्वर क्या करता है, इट्स प्रोवाइड्स अ फाइल सिस्टम इंटरफेस वेयर क्लाइंट क्रिएट, अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट द फाइल्स. अगर उसको फाइल को कुछ अपडेशन करना है, रीड करना है, राइट करना है, जो भी प्रोसेसिंग करना है तो वो फाइल सर्वर पे परफॉर्म करेगा. अगर उसको टास्क को एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो वो कंप्यूटर सर्वर पे परफॉर्म करेगा. देन एग्जाम्पल्स है एटीएम मशीन्स, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और सेलुलर नेटवर्क. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है. देन एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटेशन स्पीड अप होता है. एक सिस्टम के बदले यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स अवेलेबल है टू डू दी सेम टास्क. एक मशीन को उसको 5 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ पे 5 मशीन अवेलेबल है तो 1 ही मिनट लगेगा. ऑब्वियसली जो कंप्यूटेशन की स्पीड है वो बढ़ गई है. मीन्स फर्स्ट एडवांटेज इज कंप्यूटेशन स्पीड अप. सेकंड है रिलायबिलिटी. नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन से अगर एक मशीन खराब हो जाती है तो उसका टास्क जो है ऑल अदर मशीन जो है रिमेनिंग जो शुरू है वो टास्क जो है या प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सकती है. तो रिलायबल है. इफ वन मशीन इज फेल, अदर मशीन कैन डू द वर्क ऑफ दैट machine. Then third is the resource sharing. Other than memory, all other resources such as the input output devices, printer या scanner can be shared through the network because all the system, that is distributed system, are connected through the networking. So resource can be shared with the help of distributed operating system. And fourth advantage is communication. All the machines are connected through the networking. So communication is the advantages of that distributed operating system. Okay. This is all about डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इंडिविजुअल मशीन्स होती है जो कनेक्टेड होती है नेटवर्किंग के थ्रू. ईच मशीन को उसका सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, सिस्टम बस होता है एंड अदर जो भी रिसोर्सेस होंगे वो उसके पास होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू. और अगर कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो टास्क इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं और फाइनली कोलैबोरेट करते हैं सर्वर पे. ठीक है, देन उसको लूजली कपल सिस्टम बोलते हैं क्योंकि मेमोरी जो है वो शेयर्ड नहीं होती है. यूज्ड होता है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में या एटीएम मशीन में या सेलुलर नेटवर्किंग में. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है जिसमें एक सर्वर होता है और बाकी के क्लाइंट होते हैं. क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट फुलफिल करता है. 2 सर्वर होते हैं, एक कंप्यूटर सर्वर होता है, दूसरा फाइल सर्वर होता है. कंप्यूटर रिलेटेड अगर कुछ काम होगा तो वो कंप्यूटर सर्वर परफॉर्म करता है. फाइल रिलेटेड कुछ काम होगा तो वो फाइल सर्वर परफॉर्म करता है. एंड दिस आर द एडवांटेज है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू.